حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے ہیں۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص ہی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا۔ اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ ہے۔ بڑی گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے۔ تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے۔ بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لی۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں، خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈالنے بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی تھی، پنجابی ہے نا، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کہا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا، آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا۔ میں نے جو لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے، یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانگتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، انہیں مسافروں کی طرح رہنا۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنے، اے بھی قاضی بلے بلے۔
अज मिट्टी के उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थले। इतना ज़्यादा जनरल मकसद नहीं ना, जब समझते तो बेचैन है बेकरार। खास लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बादशाहों के बड़े बात होती है। हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफ़र पे जाते थे तो खानसा में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिचकियाँ बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे, मुझे इन दुनिया की लज़्ज़ात में उलझाने लगे। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा हुजूर आप किसको कह रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना, दूर हट जा। हट तो गई है पर जाती दफ़ा कह गई है सोने आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचे? तो मुझे सीने से लगा दे, गले से लगा दे। मकसद न समझे, अमाल का हुस्न पैदा करे। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज़ इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आता मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक दिन का बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा करे? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज़्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज़्यादा उसने अखलाक का मुज़ाहरा करते हो, किस कदर ज़्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज़्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशाअत में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करो। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है? इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाज़े ज़िंदगी। देखें हमने लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ़ का सामान बनती है। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिल के रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफ़ी का भी कहा। जब इंसान माफ़ी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी ज़िंदगी हसीन होती है। तो यहाँ आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो जो कि मकसूद नहीं था, तो उन चीज़ों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना है, हल में मजीद का रट्टा, समझ गए हम ना अड़े हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही बात का पता चल गया है, वो फैसला करने में देर कर रहे हैं, उन्हें समझ आ गई है कि बेहतर यही है कि मैं वक्त में मस्जिद आया करूँ।
उन्हें समझ आ गई है बेहतर ये है कि सवेरे उठ के ना व्हाट्सएप बाद में देखूं, पहले कुरान पाक की ज़ियारत कर ली। समझ उन्हें है, समझ है कि बातें ज़्यादा करने से बेहतर है दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ा जाए। पता उन्हें है, फैसला ही कर रहे, इरादा नहीं बना रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। जब बहुत ज़्यादा बंदा दुनियादारी में उलझ जाता है ना, बहुत ज़्यादा, आसानियाँ तो बंदे को जीने नहीं देती। पहले इंसान कहता है कि मोटरसाइकिल हो जाए ना तो चलो सफ़र आसान होगा, फिर मोटरसाइकिल कहता है टायर 2 हैं, 4 टायरों वाली हो ना, चलो मेहरान ही हो गया, खैर है। लेकिन मेहरान में बैठते ही उसे ख्याल आता है कि इसकी तो सीटें तंग हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये रोज दौड़ है, मान फकीरों किसे नहीं मारे ए हुई चोर अंदर का, ये दौड़ है, ये ख़त्म। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर थे, हमें तो ना जी एक से एक खाना, और आज ये नहीं खाना, आज मेरी मर्जी का खाना, ये मेरी मर्जी का, ये मेरे बच्चे की मर्जी का, ये फलाने की मर्जी का। ख्वाहिशात का अंबार, और नफ्स बच्चे की तरह होता है, ख्वाहिश पूरी करो तो फौरन दूसरी भी बता देता है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी की भी खबर दे देता है। हम ना क्योंकि उलझ जाते हैं, फिर वो उलझाओ हमें बाहर नहीं निकलने देते। अगर थोड़ा थोड़ा करके, मेरा मतलब ये है कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी खानी है। मतलब रोटी का लुत्फ़ कितनी देर होता है, जितनी देर मुंह में चबाते हैं, उसके बाद ख़त्म। तो कपड़ा तो पहनना था बदन छुपाने की, इसमें वो किधर से आ गई सारी कहानियाँ जो आज बन गई। और इतने मैंने अजीबोगरीब निज़ाम देखा है कि नौजवान है, अच्छा भला सियाना, कपड़े उसने ताज़े सिलवाए हैं और 99 लोगों ने कहा सही लग रहा है, सिर्फ एक ने कहा नहीं ठीक लग रहा, परेशान हो जाता है, कहते भी इसका कुछ करूँ। क्यों? इसलिए कि यही सारा मकसूद समझ लिया है, कपड़े पहनना, इसी में उलझ जाना। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मैं खुद किसी दूसरे की बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मेरी, मैं खुद जाया करता था। शादी कोई आ गई तो 2-3 दिन पहले अब्बा जी कहते थे पुराने जूते कुछ गंडवा ला, कुछ पॉलिश करा ला, तोड़े में डाल के जाना मोची के पास, उसने कुछ सेट कर देने। अब कहाँ रह गया जी ये काम, छुट्टी नहीं हो गई। अब कौन सा ऐसा सिलसिला है, वो जो कहीं से कपड़ा थोड़ा फट जाता था ना तो अम्मा उसको इस तरह पेबंद कराती थी कि डिज़ाइन भी बन जाता और काम भी जल जाता। किधर क्या बताओ। लेकिन तकलीफ देख लें आज पहले से ज़्यादा है, लड़ाई पहले से ज़्यादा है, आजमाइश पहले से ज़्यादा है। क्यों? जितनी भी ख्वाहिशात आप बढ़ाते जाएंगे ना, मकसद फौत होता जाएगा। जितनी भी मकसूद सफ़र करना है, गाड़ी दिखाना तो मकसूद नहीं, लेकिन हमें वो वाली गाड़ी चाहिए कि लोग एक दफ़ा उंगली मुंह में डालें कि वो इस गाड़ी में बैठा हुआ। हम मकसद से पीछे हटेंगे जब फिर तकलीफ़ में आएंगे, फिर आजमाइश। ज़िंदगी में हमने जो चीज़ें मैनेज की हैं वो सारी दूसरों के लिए, हमारे लिए कोई शय भी नहीं। वलीमे पे गए ताकि बरादरी राज़ी हो जाए, ताज़ियत के लिए गए ताकि मोहल्ला राज़ी हो जाए, फलाना काम किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे हक में हो जाए। सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी के गुजार दी, और आपने 99 नेकियां की, एक खामी आई तो लोग तो वो थे जो फिर बिगड़ गए। तो बेहतर नहीं बंदा रब को ही राज़ी करे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल का ज़्यादा हक़ है कि उन्हें राज़ी किया, उनका ज़्यादा हक़। अपनी ज़िंदगी में मामलात को तरतीब दें, एक मखसूस सेन बनाएं, इतना सवेरे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतना दरूद पाक, और ये राज वो हमारा और हमारे रब का, ये राज वो इतनी देर मुसल्ले में बैठना है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर साहब में बैठा था, तो वो एक शख्स को कह रहे थे तेरे दिल में कुछ बातें हैं निकाल दे ताकि तेरी टेंशन रिलीज़ हो जाए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो एक बात मैं भी कर लूँ। मैंने कहा आप भी कर लें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ तो बड़े ज़ाती और निजी होते हैं, बंदा किसी के सामने कह ही नहीं सकता, बड़े ज़ाती किस्म के होते हैं वो। आप किसी के सामने इतना मर्जी कोई करीबी हो, वो बंदे की अपनी अंदर की कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं अंदर की, आजम गंडा दे विच गंडा दस केड़ी खोला, बड़े मसले होते हैं, आप कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगा पीर साहब हाल तो होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल है, हमें हमारे दीन ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने रब से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो, कशकोले तलब दराज करके कह दो मालिक यहाँ परेशान, वो बड़ा करीम है, अता भी करेगा और पर्दा पोशी भी फरमाएगा।
अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी में हुस्न आमाल का पैदा करें, आमाल कहानियों का नहीं, बातों का नहीं, तस्वीरों का नहीं, नई से नई पिक्चर का नहीं, आमाल का। और खूबसूरत तरीन तरीका हो। देखिए ना, मुश्किल से भी तो नमाज पढ़नी है ना। सवेरे अब्बा बड़े गुस्से में थे तो फिर मुझे उठना ही पड़ा, तो इस तरह भी तो पढ़नी है। तो अगर बंदा ज़ौक़ से उठे और ज़रा सोना करके वज़ू करे और ज़रा सही करके मुसल्ला बिछाए और सजदा करे तो ज़रा ज़ौक़ से करे। मुझे सोच दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूँ, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। इस ज़ौक़ के साथ आगे बढ़े। मकासद जब बंदा समझ जाता है ना, मकासद, फिर उसके लिए आसानी होती है। मैंने अर्ज़ किया था ज़्यादा बातें नहीं करनी, मकसूद को एक पैगाम देना है। अब हमने जाने वालों के लिए क्या करना है? एक तो ये कि अपना मकसद ठीक करना है कि रुखसत हो गए। अपने बुजुर्गों को ना याद रखें, असल काम है उनको खोल के बताइए। साल के बाद ख़त्म, बड़ी अच्छी बात है। ससमाही, शशमाही, सहमाही सब ठीक है, उनको याद रखें। हुजूर ना याद रखते थे, अपनी वालदा का जिक्र करते, अपने वालिद की बात करते, अपने दादा का जिक्र करते। अपने जानिब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विसाल कर दी तो हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर अक्सर घर में उनका जिक्र करते। अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका जिक्र करें। उनको ना, वालिद के लिए ना वालिद होना शर्त है, PhD होना शर्त नहीं। वालिद के लिए वालिद होना शर्त है, मुफ्ती होना शर्त है। वालिद अनपढ़ भी हो तो बच्चे को समझाने का सलीका से अल्लाह उसे अताकारी दे। माँ बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो बच्चों को समझाने का तरीका अल्लाह उसे, इनसे सीखे। मेरे वालिदैन और वालदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपने माँ बाप। इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, उन्हीं का खासा था। तो अपने वालिद, एक तो जाने वालों को याद रखें, दूसरा उनके लिए दुआ करें तो दर्द से करें, सोनी करके, सही करके, अकेले बैठ के करें। दुआ का सबसे ज़्यादा ताल्लुक आपके दिल की आवाज़ के साथ होता है। और जिस तर्ज में हुजूर ने हमें हदीस सिखाई है ना, उस रंग में कभी आप हदीस को सीखें, समझे ना। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह दरिया में डूबने वाला सहारा तलाश करता, दरिया में उसे कितनी कुछ जल्दी होती है, गोते लग रहे होते हैं, वो इस तरह का नहीं होता कि मैं असर की नमाज के बाद फिर आऊँगा तुझे निकाल, इस तरह तो नहीं ना होता। दरिया में डूबने वाला इस तरह कश्ती सहारा तलाश करता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह कब्र में जाने वाला दुआओं का इंतजार करता है। आपने देर कर दी, तो ख़त्म दिलाने में देर कर दी। खुद सुबह शाम हमा वक्त वाक अभी आप आयते सुन रहे थे, सुन रही अल्लाह ने नमाज में रख दी, रब्बना इग़फिर वाली वलिल-मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। एक तो ने याद रखे, खूब दुआ करें। और दूसरा कोशिश करें कि वो जो नेकियां करते थे वो नेकियां भी जारी रहें। जिन लोगों से उनका अच्छा ताल्लुक था वो ताल्लुक भी कायम रहे। ये भी कोशिश करें कि उनके लिए सदका तो खैरात दें, और कीमती सदका दें। मैं बात खत्म करने लगा हूँ बस। कीमती सदका दें, कीमती। 15 तोले सोना घर में पड़ा होता है, कीमती होता है। कभी किसी ने चौक में बताया आगे कि आज 15 तोले सोना मेरे घर में पड़ा, बोलो लगता है तो सौदा छेड़ दें। अगर घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा हो तो चौक में गली में आके आप बात करें कि घर में पैसे पड़े, क्यों? वो कीमती है, कोई ले ना ले। तो ये जो 5000 मस्जिद देख के सारे मोहल्ले को बताते हो ये भी सदका था, ये बड़ा कीमती चीज़ थी, ये बताने वाला नहीं था। ये तो देखी तो कीमती थी। कीमती चीज़ जो होती है वो तो छुपाई जाती है कि बताई जाती है। ये जो बेटियां हैं ना इस्लाम की, माएँ बहनें, ये कीमती हैं। इसलिए इस्लाम इन्हें कहता है तुम गलियों और चौकों में आने वाली नहीं, कीमती चीज़ें घर के अंदर ला कर, तुम कीमती चीज़ें हो, तुम्हारा वजूद कीमती है। तुम कभी माँ हो, कभी बेटी हो, कभी बहन हो, कभी बीवी हो, कीमती हो। इसलिए तुम्हें इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहोगी तो तुम्हारी कीमत रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चौकों में गलियों में फैल जाए तो उनकी कीमत नहीं रहती। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि घर में
में रहो। ये जो तुम्हें चौंकों में लाते हैं, ये तुम्हें बेवकूफ़ करना चाहते हैं, बेकीमत करना चाहते हैं। इंसान थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए गौर करे तो बड़े बड़े जानवर इंसान से बड़े ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी नकेल इंसान के हाथ में थमा दी। इतना बड़ा जहाज है, टनों वजन लेके चल रहा, इंसान के बस की बात नहीं कि वो कई लोग लग के भी उसको उठा सके, लेकिन अल्लाह ने इसके कब्ज़ा व इख्तियार में कर दिया है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, ज़मीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया है, आसमान में जो है सारा तेरे लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कुल कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। मकसद ज़िंदगी, मकसद तख्लीक, दुनिया में आने का मकसद अव्वली और मकसद आखिरी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ रुजू, यही एक मकसद था इंसान के आने का। इसी को कुरान ने बयान किया था। अपने अपने मकासद दुरूशी पढ़ने वालों से बुलंद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अपने अपने मकासद, अपने अपने मामलात को हमने तरतीब दे लिया है। सुबह से शाम तक के मामलात सारे के सारे हमारे साथी, निजी और हमारे अपने बनाए हुए मकासद के तहत गुजर रहे हैं। हालांकि रब्बे करीम ने फरमाया कि इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपने लिए तुझे बनाया है। तू मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो, तू मेरी बारगाह की तरफ तवज्जो करे, तू मेरे लिए तस्बीह पढ़े, तू तहलील के जुमले बोले, तू तकबीर कहे, तू मेरे महबूब पे नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत करे। तुझे तो इसलिए बनाया था। इबादत का माना याद रखिएगा, इबादत का माना फ़कत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत का माना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं। नमाज इबादत का एक जोज़ है, नमाज इबादत का एक हिस्सा है। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इबादत रोज़ा रखने का नाम नहीं, इबादत सिर्फ और सिर्फ हज करने का नाम नहीं, फ़कत जिक्र फिक्र करना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत है। खुदा रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। जहाँ जाने का खुदा हुक्म दे वहाँ चले जाओ, ये इबादत है। जहाँ जाने से मना कर दे वहाँ कभी ना जाओ, ये इबादत है। अगर नमाज पढ़ने का नाम ही इबादत होता तो फिर फजर के वक़्त क्यों पढ़नी पड़ती, फिर ज़ोहर में ही क्यों फ़र्ज होती, फिर असर का वक़्त मगरिब में जाके क्यों ना शुरू किया जाता, फिर इंसान की मर्ज़ी थी जब पढ़ लेता। फरमाया नहीं, इबादत मेरी है, असल मेरी इताअत है। मैं जब कहूँ कि ये फजर का वक़्त है तो तुझे फजर मान के पढ़ना, जब कहूँ ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर मान के। हमने इबादत को मखसूस कर दिया। मस्जिद में चले जाना, नफल पढ़ लेना, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ लेना, कुछ देर अल्लाह की इबादत कर लेना, कुछ देर जिक्र अज़कार कर लेना, इसका नाम इबादत है। और बाहर निकल के बेशक झूठ बोले, बाहर निकल के बेशक ग़ीबत करे, बाहर निकले और कम तोले, बाहर निकले और अपनी मन मर्जी करे, तो ये इबादत नहीं। इसलिए कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह हर जगह है। जे मैं तेनू अंदर जाना फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर समझा अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, बिच बुल्ला कौन नुमाना। असल बात यह है कि जब खुदा हर जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर जगह मानना है, हर जगह इताअत करनी है, हर लिहाज से। रब की बात मानने का नाम इबादत है। अल्लाह की, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का नाम, तवज्जो है आपकी मेरी बात में, इबादत का मफ़हूम समझिएगा, इबादत का मफ़हूम समझिएगा। हमारा वो दीन नहीं जो पंडितों, जोगियों, राहबों का मज़हब है कि जंगलों में निकल जाओ, तस्बीह ले लो, मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह।
اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام کی بات۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ توڑنے کی چیز نہیں، تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے۔ دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر داؤدی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا یا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ دی۔ مجھے میں نے کہا عبادت ہے خدا کا
حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا۔